وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس پزنجو کا کہنا ہے کہ 10 سال سے صوبے میں قحط سالی تھی، بارشوں اور سیلاب نے مزید تباہی پھیلاتی ہے۔ حکومت متاثرین کی مدد کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ لوگوں کو دوبارہ آباد کرنے کا مرحلہ مشکل ہوگا، وہ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے، تاکہ ہم جہاں جہاں پہ پہنچ سکتے ہیں پہنچ رہے ہیں۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ زمینی راستہ بھی سارا کٹ چکا ہے، ڈیمیج ہو چکا ہے، اور جو ہم ہیلی سے بھی آپریٹ کرنا چاہتے ہیں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ فرسٹ تو ریلیف ہے اور ریسکیو ہے، وہ تو کر رہے ہیں۔ آتے ہیں اب ریہیبلیٹیشن کے لیے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، اور یہ مشکل مرحلے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مدد تو رہنمائی فرمائے۔ سو کائنڈ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کا کہ وہ اس چیز میں ہر ٹائم اپڈیٹ لیتے رہے ہیں اور میٹنگ کرتے رہے ہیں، جہاں جہاں سپورٹ کی ضرورت ہو۔ این ڈی ایم اے کو انہوں نے لانچ کیا، ایک دم انسٹرکشن دیا کہ بلوچستان پہنچے، وہاں پہ جو جو ضروریات ہیں ان کو مل کے میٹ کریں، تاکہ بلوچستان کی گورنمنٹ ہے، بلوچستان کے عوام ہے، وہ کمزور نہیں پڑ جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے پرائم منسٹر صاحب کا، آرمی چیف کا۔ یہ سب ایک پیج میں ہیں اور مشوروں سے جہاں جہاں پہ ضرورت ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فضائیہ کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ راشن تقسیم کرنے کے ساتھ کئی خاندانوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پی اے ایف کے ہیلی کاپٹرز نے گزشتہ 2 روز کے دوران 8200 کلو گرام راشن تقسیم کیا۔ آفت زدہ علاقوں میں آٹا، گھی، چینی، دال، چائے تقسیم کی گئی۔ پاک فضائیہ کے دستوں نے کئی خاندانوں کو محفوظ مقامات پر بھی منتقل کیا۔ پاک فضائیہ قدرتی آفات کے دوران انسانی امداد فراہم کرنے میں ہمیشہ پیش ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان کو عالمی سازش کے تحت نکالا نہیں گیا بلکہ لایا گیا تھا۔ ان کی اصلیت جانتے ہیں، فورن فنڈنگ کے ذریعے اسرائیل اور بھارت سے پیسہ آیا۔ پہلے انہیں اقتدار سے نکالا، اب نام و نشان مٹائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان پشاور میں کارکنوں سے مخاطب تھے۔ کہتے ہیں بین الاقوامی سازش کے تحت مجھے اقتدار سے نکالا گیا، بین الاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو نہیں نکالا گیا، بین الاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو لایا گیا تھا۔ ہم تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں۔ اقتدار سے اتارنا یہ کافی نہیں ہے، ابھی اس کے نام و نشان کو اور ان کے قدموں کے نشان کو بھی مٹانا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں تمہارے پاس اسرائیل سے پیسہ آیا ہے، تمہارے پاس انڈیا سے پیسہ آیا ہے، تمہارے یہاں گھر کا کرایہ 9 سال تک امریکی قونصلیٹ دیتا رہا ہے، پھر بھی تم آزادی کی بات کرتے ہو۔ ایک ملک دشمن عنصر پاکستان میں بیرونی فنڈنگ کے ذریعے، بیرونی سپورٹ کے ذریعے داخل ہو چکا ہے اور وہ ملک کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے تحریک انصاف نے فارن فنڈنگ کے متعدد اکاؤنٹ چھپائے۔ عمران خان مسٹر کلین نہیں، مسٹر کرپشن اور مسٹر انا پرست ہیں۔ انہیں ہٹلر نہیں بننے دیں گے، جھوٹ بے نقاب کریں گے۔ ہم نے سیاسی ساتھ داؤ پر لگا کر مشکل فیصلے کیے، معیشت بحال کر کے دکھائیں گے۔ انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کی۔ یہ جو مسٹر کلین بنتا ہے یہ دراصل مسٹر کلین نہیں ہے، یہ مسٹر کرپشن ہے، یہ مسٹر منی لانڈرر ہے، یہ مسٹر جھوٹ ہے، یہ مسٹر انا پرستی ہے، جس نے ہٹلر کی طرح اپنی انا کو اور اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا تھا۔ عمران خان، ہم تمہیں ہٹلر نہیں بننے دیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ وہ سودا جو جھوٹ پہ مبنی ہو، جو انا پرستی پہ مبنی ہو، وہ کبھی دیر پا نہیں ہوتا۔ اس نے جلسوں میں کھڑے ہو کر میرے خلاف کہا ہے کہ تم چور اور ڈاکو ہو۔ عمران خان، میں تمہارے خلاف مقدمہ قائم کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو تم ہو۔ اس کا ثبوت تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور میں حیران ہوں کیا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ عمران خان کی دھمکیوں سے ڈر کے فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آزادانہ طور پہ فورن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ کرے گا، چونکہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا
करप्शन का केस है, सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और ये सब खेल इमरान खान के दस्तखतों से खेला गया है। और हमने साबित किया है कि हमने वो मुश्किल फैसले भी किए हैं जो शायद कोई सियासी हुकूमत करने से 100 दफ़ा हिचकिचाती। तो अगले चंद माह के अंदर हम इस मईशत को मुस्तहकम करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का कहना है कि आरिफ नकवी ने गैर कानूनी तरीके से क्रिकेट क्लब की रकम पीटीआई के अकाउंट में भेजी। अगर कोई शख्स $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल गुनाह हो तो क्या वो सादिक और अमीन है? कानून के मुताबिक कोई भी सियासी जमात किसी गैर मुल्की शख्स या कंपनी से पैसे नहीं ले सकते। अगर कोई शख्स $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम का शरीक जुर्म हो, शामिल गुनाह हो और अबैटर हो, तो क्या वो सादिक और अमीन है? अगर कोई शख्स ऐसे शख्स का गारंटोर हो जिसको 290 साल की सज़ा का अंदिया दिया जा रहा हो अमरीकी अदालतों से, तो क्या वो सादिक और अमीन है? इल्लीगल पैसा जो पाकिस्तान में नहीं आ सकता, उसको लॉन्डर करने के लिए, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, काला धन सफ़ेद करने की एक तरीक़ाकार के लिए पहले एक ज़मीन ली गई ऑक्सफोर्डशायर में, वहाँ पे एक क्रिकेट क्लब खोला गया। उस क्रिकेट क्लब में T20 बनाया गया, और ये वो तरीक़ाकार था जिसके ज़रिए काला धन, इल्लीगल मनी लॉन्डर किया गया इस स्कीम के ज़रिए, और वो तमाम पैसे पाकिस्तान भेजे गए किसके अकाउंट में? पीटीआई के अकाउंट। 2 मिलियन पाउंड अबराज इन्वेस्टमेंट्स के अकाउंट से निकाल के 2 मिलियन पाउंड जो हैं इमरान खान साहब को भेजे पीटीआई के अकाउंट में, इल्लीगली मनी लॉन्डर करके। हम आज भी चोर हैं, वो आज भी सादिक और अमीन हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से नफरत हैरान कुन है। पीटीआई फंडिंग केस का फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ आना चाहिए। जबकि आरिफ नकवी पाकिस्तानी है, बैरून मुल्क से पैसा कानूनी तरीके से पाकिस्तान आया, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और ये बिलावल और ये जो पीडीएम के लोग हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी से नफरत में क्यों मुब्तला है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम ये कह रहे हैं कि देखें, हम जो फंडिंग करते हैं वो हम ऐसे ही करते हैं और हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। आरिफ नकवी पाकिस्तानी हैं, उन्होंने वो पैसा भेजा, वो पैसा जो है वो लीगल तरीके से पाकिस्तान आया, लीगल तरीके से डिक्लेयर हुआ। जो केस का फ़ैसला है वो पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI का केस इकट्ठा लोगों के सामने रखा जाए। हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत घर चली जाएगी और हम मुल्क में जनरल इलेक्शंस कराएंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि आजमाइशों ने इन्हें मजबूत और इनके अज़्म को मज़ीद पुख्ता किया, जुल्म के खिलाफ डटे रहेंगे। मरियम नवाज ने ट्विटर पर अपने एक बयान में लिखा कि जुल्म और सितम के खिलाफ 1999 में भी खड़े थे और 23 साल बाद भी डटे हैं। आजमाइशों ने उन्हें मजबूत और अज़्म को मज़ीद पुख्ता किया। ज़ालिमाना और गैर मुनसिफाना सलूक के लिए मियां नवाज शरीफ को अकेला करने का सिलसिला आज तक ख़त्म नहीं हुआ, मगर हिम्मत नहीं हारेंगे। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। पंजाब असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद की एक और बड़ी फतह। हुकूमत इत्तेहाद के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने कागजात नामजद की जमा ही न कराए। राजा बिशारत कहते हैं अपोजिशन ने शिकस्त देखते हुए राह फरार अख्तियार किया। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब तहरीक इंसाफ के वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने कागजात नामजद की जमा ही न करवाए। डिप्टी स्पीकर के लिए PTI के वासिक क़य्यूम अब्बासी ने 7 कागजात नामजदगी जमा करवाए। अपोजिशन इत्तेहाद के अली हैदर गिलानी ने मुकर्रर वक्त शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा न करवाए। सेक्रेटरी असम्बली अनायतुल्लाह ने जांच पड़ताल के बाद वासिक क़य्यूम अब्बासी के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए और ऐलान किया कि किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। 7 पेपर आए हैं, वासिक क़य्यूम अब्बासी को नामजद किया गया है और सातों के सातों जो हैं वो स्क्रूटनी हो गई है
और ये एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। PTI रहनुमा रजा बशारत ने कहा कि अपोजिशन को अपनी शिकस्त नजर आ रही थी, उन्होंने राह फरार इख्तियार की। वासिक क़य्यूम अब्बासी बोले, आज वजारत आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकरशिप तहरीक इंसाफ के पास है, अब हमारा रुख वफाकी हुकूमत की जानिब है। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि उन्हें अपनी शिकस्त जो है वो नज़र आ रही थी, उन्हें मालूम था कि जो कल का उनका एक वोट का टॉल है उससे ज़्यादा उनको वोट नहीं मिलने। ऐवान के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से CMB हमारे अलाइज चौधरी परवेज़ अलाई साहब, स्पीकर सब्तैन खान साहब वो भी PTI के पास, और अल्लाह की मेहरबानी से डिप्टी स्पीकर भी PTI के पास है। और ये 17 से जो तसलसल शुरू हुआ है जो कामयाबी का पंजाब में, और ये तसलसल यकीनन इमरान खान साहब के बयानिए पे था। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के नामजद उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज स्पीकर के लिए इंतखाबी अमल शफाफ नहीं हुआ, इसीलिए क़यादत ने डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला किया। हम इस इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। हम डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का बाइकआउट तमाम जमातें करेंगी, तो कल कोई इलेक्शन नहीं होगा हमारी तरफ से। हम कोर्ट में जाएंगे और अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ है कल उसके ऊपर अपना फैसला सुनाए। पंजाब असम्बली के इजलास में वासिक क़य्यूम अब्बासी को बाज़ाब्ता तौर पर बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर करार दिया जाएगा, जिसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान इनसे हल्फ लेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास इतवार को दोपहर 1 बजे होगा। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में अहम इजलास हुआ। हेल्थ कार्ड को आगे बढ़ाने, तमाम अस्पतालों की इमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड करने और अद्वियात की मुफ्त फराहमी का फैसला किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि मरीज का हक है इसे इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात मिले। वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बिस्तरों की तादाद 400 तक बढ़ाई जाएगी। डॉक्टर्स की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि सूबे के आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के लिए फ़ाइल किसी जगह नहीं रुकनी चाहिए। इजलास में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत अहम हुक्काम ने शिरकत की। लाहौर की खुसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 7 सितंबर को तलब कर लिया। FIA ने इश्तिहारी मुल्जिम सलमान शहबाज की जायदादों की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। केस की समाअत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश न हुए। दोनों रहनुमाओं के वकील ने हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की। FIA ने हमजा शहबाज की हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त पर एतराज़ किया। इश्तिहारी मुल्जिम सलमान शहबाज की जायदादों की तफसील भी जमा करा दी। मुल्जिम मलिक मकसूद की डेथ सर्टिफिकेट की रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराई गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हक़ान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में मुबैना टैंपरिंग का इंकशाफ हुआ है। नैब के गवाह नासिर बशीर ने अपने बयान में कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ कभी बयान नहीं दिया। गवाह का मजीद कहना है कि नैब तफ्तीशी अफसर मलिक ज़ुबैर ने अपनी तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लिखा। LNG रेफरेंस के गवाह नासिर बशीर ने एहतसाब अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि इमरान खान जब इक़्तिदार में आए तो डॉलर 122 रुपये, हुकूमत ख़त्म हुई तो 190 पर पहुँच चुका था। इत्तेहादी हुकूमत ने सियासी कीमत चुकाकर मुल्क को बचाया। मफ्ता इस्माइल का अपने ट्वीट में कहना था कि इमरान खान के आखिरी साल में पाकिस्तान ने 80 अरब डॉलर की अशिया दरआमद की। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा था। PTI हुकूमत ने अपने 4 सालों में हर साल पहले से ज़्यादा तिजारती खसारा किया। इमरान खान पाकिस्तान को दिवालिया होने की तरफ ले गए। इत्तेहादी हुकूमत ने सियासी कीमत चुकाई लेकिन मुल्क को बचाया। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने पर फ़ख्र है। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक ने कहा कि लाहौर एयरपोर्ट पर आइंदा 5 साल में 5 अरब की सरमायाकारी होगी। PTI में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। उन्होंने मजीद कहा कि जो काम नहीं करेगा उसकी इस इदारे में कोई जगह नहीं। बोइंग 777 1 साल से ग्राउंड था जो अब फंक्शनल हो जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट इस वक्त सबसे ज़्यादा अर्निंग एयरपोर्ट है पाकिस्तान के बाकी सारे एयरपोर्ट्स में। तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होगी जो 19 बिलियन को तजावज़ करेगी डेफिनेटली, ये 5 साल में इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएगी। कराची एयरपोर्ट के रनवे पर इसी साल काम शुरू होगा उसकी अपग्रेडेशन पे। सखर और डेरा इस्माइल खान के एयरपोर्ट्स को इंशाल्लाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का दर्जा दिया जाएगा। अगले फिस्कल ईयर के अंदर 3 नए जहाज़ इनको A330 3 से 4 लेके आने हैं, तभी हमारा निज़ाम आगे बढ़ पाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो ये फ़्लाइट्स हमारी बंद हैं यूरोप की, जिसमें अब UK भी उसमें शामिल है, ज़ाहिर है अमेरिका भी हमारे जहाज़ नहीं जा रहे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि
पहली तरजीह के तौर पे यूके और अमेरिका की फ़्लाइट्स बहाल हों। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची में गलाजत के ढेर हैं, नाले उबल रहे हैं और घरों में पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। शहर में टैंकर माफिया का राज है, हुकूमत ने काम ना करने की ठान ली है। नौजवानों को अपने हकूक के लिए बाहर निकलना होगा, जल्द एहतजाज की कॉल देंगे। गलाजत के ढेर तो पड़े हुए हैं, गटर तो मौजूद हैं, गटर का पानी तो जगह जगह मौजूद है, नाले सड़ रहे हैं, बरसाती नालों में सीवरेज का पानी सड़ रहा है, लेकिन पानी घरों में दस्तयाब नहीं है। और टैंकर माफिया का एक मरतबा फिर राज है इस वक्त शहर में। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? इन्होंने तय किया हुआ है कि कराची के लोगों को अजियत में मुब्तला करो, इनको मायूस करो, यहाँ से निकाल दो, और फिर पता नहीं इनका क्या एजेंडा है कि उसके नतीजे में क्या करना चाहते हैं। कराची के आवाम से, खास तौर पर नौजवानों से कहता हूँ कि अब उनको बाहर निकलना होगा। जब तक वो बाहर निकलेंगे नहीं, जब तक वो एहतजाज नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे, इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है।